વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રાર્થના માટે તૈયાર? સર્વેની આંખો બંધ. સહનાવતુ સહનૌ ભુનક્તુ સહ વીર્યં કરવાવહૈ તેજસ્વિનાવધીતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહૈ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. Friends, if you rest, you rust. Remember this. Hello my dear friends, today second lecture. Welcome to this lecture. Today we are going to study about blood groups. You might have heard about blood group A, B, AB and O. So it is called ABO blood group system. We will see about positive and negative. It is called RH blood group. It may be either positive or negative. In our total human population, round about 80% of the people are positive. That is RH positive. All of you are positive in terms of science. Okay. First of all, we are going after blood group ABO. So we are aware about one fact that, let me write here first, group. That is A blood group, someone will have B blood group and AB blood group and blood group O. You are aware, right? For example, myself, I am O positive. કોક O negative હોય, કોક A positive, A negative, B positive, B negative, AB positive, AB negative. તો આમ જોઈએ તો 8 हुए. Okay. Now the person whose blood group is, હવે આ બોર્ડ વર્ક કઈ રીતને થાય છે એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, એટલે હાવ ઇઝી થઈ જશે. The topic will be very very easy. Person whose blood group is A, तो आ A ક્યાંથી આવ્યું? E. Okay. उसका जो RBC रहता है, this is the RBC, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स. उसके ऊपर एक एंटीजन रहता है, एंटीजन. इट इज एंटीजन ए. सो इट इज एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन. આપણે એને ડ્રોઈંગ કરશું આ રીતે, રાઉન્ડ ગોળ કરી નાખીએ. ધીસ ઇઝ એન્ટીજન એ. एंटीजन कैपिटल ए, राइट. तो जेनु ब्लड ग्रुप ए छे, उसके ब्लड के अंदर जो आरबीसीज रहते हैं, उसके ऊपर एक स्पेशल काइंड का एंटीजन होता है, उसको एंटीजन ए बोलते हैं, इसीलिए उसका ब्लड ग्रुप ए हुआ. ओके. सो ए इज एंटीजन. इट इज अदरवाइज नोन एज एग्लूटिनोजन. एग्लूटिनोजन, एग्लूटिनोजन એને ઈ કહેવાય. હવે જેનું ગ્રુપ બી છે, उसका जो आरबीसी रहता है, उसके ऊपर एंटीजन बी रहेगा. तो ए अगर हमने यहां पर लिया है राउंड, तो बी को राउंड नहीं लेना है, बिकॉज इट इज बी, इट इज नॉट ए. तो भाई चलो कुछ स्क्वायर ले लेते. ओके. दिस इज एंटीजन कैपिटल बी, एंटीजन और एग्लूटिनोजन बी, इसीलिए इसका ब्लड ग्रुप हुआ बी. फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन, फॉर एग्जाम्पल उसकी वाइफ जया बच्चन जी, उसका बी, अमिताभ जी का ए. सपोज पर्सन हुज ब्लड ग्रुप इज ए बी विल हैव बोथ ऑन आरबीसीज. ए भी रहेगा, बी भी रहेगा, एंटीजन ए बी, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, दोनों रहेगा. नाउ व्हाट अबाउट ओ? What about O? Nothing is O. RBCs के ऊपर
ए बी कुछ नहीं है, इसीलिए उसको कुछ नहीं है, इसीलिए उसको रखा ओ, राइट। इसका अपन लोग जेनेटिक्स में भी देखेंगे कि ऐसा क्यों बन रहा है। What is the main reason behind the formation of antigen A, antigen B? Is there anything in our cell that controls the formation of A, B? Is there anything in our cell whose expression is for the synthesis of A, B or nothing to synthesize? तो ये अपने को मालूम हो गया कि भाई ब्लड ग्रुप is on the basis of such kind of the antigens, whether it is present on RBC only A or B or both or nothing. તો હવે તમારામાંથી જેનું બ્લડ ગ્રુપ B છે એના RBC ની ઉપર એન્ટીજન B છે. This B is called agglutinogen B2. Okay? Now one more thing. ये जो पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन है, उसका जो ब्लड प्लाज्मा रहते हैं उसके अंदर एंटीबॉडी रहता है, एंटीबॉडी, और इट इज कॉल्ड एग्लूटिनिन. एग्लूटिनिन एंटीबॉडी, ધીસ આર નેચરલ. હા, એનામાં હોય જ તે. તો હવે જોજો, હવે બહુ મજા પડે એવું શરૂ થાય છે. જેનું બ્લડ ગ્રુપ એ છે ને એમના બ્લડમાં એન્ટીબોડી એન્ટી બી હોય. ઇટ ઇઝ રિટન એઝ એન્ટી બી. એટલે કે આની સાથે બાઇન્ડ થાય એવા, તો એને આપણે ખાલી ઇન્ડિકેશન માટે આ રીતના ડ્રોઈંગ કરીએ, એન્ટી બી. ઘણી બુકમાં સ્મોલ બી પણ લખેલું હોય, એગ્લુટિનિન સ્મોલ બી ઓર એન્ટીબોડી સ્મોલ બી. હવે જેનું ગ્રુપ બી છે एमना ब्लड में उसका जो आरबीसी रहता है उसके ऊपर एंटीजन बी है, तो यहां पर एंटी ए, मतलब इसके साथ जो बाइंड हो सके वो, मगर है इसके अंदर. नाउ यू आर अवेयर, एंटी ए. ओके, ए बी के पास ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, और यहां पर दोनों रहते हैं, एंटी ए एंटी बी, एंटी ए एंटी बी. ओके, ऐसा है. ये सब नेचुरल है. जिसका भी ब्लड ग्रुप ए होगा उसके आरबीसी के ऊपर ऐसा एंटीजन रहेगा, और उसके ब्लड में, उसके ब्लड प्लाज्मा के अंदर ऐसा एंटी बी रहेगा, एग्लूटिनिन बी. ये अपने को पता होना चाहिए. ओके, तो अभी ये मैंने यहाँ पर रखा, इसको भी इरेज कर देते हैं. ये एक अपना बोर्ड वर्क हो गया है अच्छी तरीके से, राइट. ये आपको मालूम होना चाहिए. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू अंडरस्टैंड, वेन एवर एनीबडी नीड्स ब्लड एंड सपोज ही इज A positive, he must be given the blood of A positive. Okay, that we are aware. ई જેને પર્સન બ્લડ આપી શકવો જોઈએ કે જે A પોઝિટિવ હોય. બીજું કાંક આડું થઈ ગયું, માનો કે A વાળાને જો તમે B નું બ્લડ આપી દો છો, so this B blood group containing person is donor, this is recipient. તો એને ક્લમ્પિંગ થઈ જાય. જોજો ફરી વખત સમજો. સપોઝ ડોનર બી છે, એ રેસિપિયન્ટ છે, તો આનો જે એન્ટીજન હોય ને આ, એની સાથે આ એન્ટીબોડીનું ક્લમ્પિંગ થઈ જાય. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ક્લમ્પિંગ. એટલે આવા તો ધેર આર સો મેની આરબીસીસ, એન્ટીબોડીઝ, હે, તો આની સાથે આ બાઇન્ડ થઈ જાય આમ આમ. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ક્લમ્પિંગ. તો જે કોઈ પણ રેસિપિયન્ટ છે એનું ડેથ પણ થઈ શકે, એટલે એ બ્લડ ગ્રુપ વાળાને બીનું બ્લડ ન અપાય. એવી રીતને જો બી વાળો રેસિપિયન્ટ છે, એ ઇઝ અ ડોનર. જોજો તો શું થાય ખબર છે, डोनर એટલે આ આવે છે ને આની સાથે આ બાઇન્ડ થઈ જાય. उसका मतलब क्या हुआ, रिसीवर जो है उसका एंटीबॉडी इफेक्ट कर रहा है,
सामने वाले के एंटीजन के साथ क्लम्पिंग कर रहा है, बिकॉज रिस्पॉन्स देने वाला रेसिपियंट है, इट इज नॉट डोनर ब्लड. કારણ કે ડોનરમાંથી તો એ બ્લડ નીકળી ગયું છે ને, એટલે રિસ્પોન્સ આ આપશે, એક્ટિવનેસ આની છે, આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. નાઉ યુ આર અવેર અબાઉટ who is universal donor and who is universal recipient. ભાઈ કોણ કોને બ્લડ આપી શકે એ આપણને ખબર જ છે, છતાં પણ let we make one good chart to understand this. Okay, I will write here A, यहाँ पर लिखता हूँ AB, यहाँ पर O, यहाँ पर B. अभी देखना है आपको, अभी देखना है. देखो एक एग्जाम्पल जो हमने लिया दूसरा वाला, ये रेसिपिएंट है, ये डोनर है, रिसीवर છે એના એન્ટીબોડી એક્શન આપે છે, એના એન્ટીબોડી એક્શન આપે છે, સામેથી જે આવે છે એના એન્ટીજનની સામે. ઓકે, આ એક તમારે માઇન્ડમાં રાખવાનું છે. તો જો સામેથી એન્ટીજન આવે જ નહીં, એન્ટીજન જ ન આવે સપોઝ, તો આની પાસે એન્ટીબોડી પડ્યા હોય તોય તે એ કોઈ ટાઈપનું રિએક્શન આપી શકે નહીં. એવું થયું. અને જેની પાસે એકલા એન્ટી એ એન્ટી બી જ પડ્યા છે, એનું બ્લડ કોકનામાં જશે तो उसके पास एंटीजन तो है नहीं, एंटीजन तो है नहीं, तो सामने वाले का एंटीबॉडी उसके साथ क्लम्पिंग नहीं करेगा, नहीं करेगा. सो आई कैन गिव ब्लड ऑफ O ग्रुप टू AB, टू O यूनिवर्सल डोनर, टू B, राइट. O के पास एंटीजन है ही नहीं, तो वो किसी को अपना ब्लड दे सकता है. आप ले जाओ, आप ले जाओ, मैं दानेश्वरी कर्ण हूं. ओके, अगर आपके पास रिएक्शन देने वाला एंटीबॉडी है ही नहीं, एंटीबॉडी है ही नहीं, तो आप किसी का भी ब्लड ले सकते हो, यूनिवर्सल रेसिपिएंट. तो ये AB वाला ये है, तो ये A का भी ले सकता है, B का भी ले सकता है. So on the basis of this chart, we can say that O can give blood to A, AB, B and O वाले को भी वो दे सकता है ना, O वाले को भी वो दे सकता है. एरो जे अंदर गयो आने ने आप्यू. ओके, अभी AB को देखो कि AB है जो AB वाला जो कोई भी पर्सन है वो A का भी ले सकता है, O का भी ले सकता है, B का भी ले सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल डोनर. हवे A का ले सकता है, AB का तो ले ही सकता है, B का तो ले ही सकता है. अपना चार्ट हो गया. अभी यहां से कितने सारे क्वेश्चन का आंसर निकलेगा. देखो ए किसका ब्लड ले सकता है, तो कि वो A वाले का ले सकता है, O वाले का ले सकता है. A किसको ब्लड दे सकता है, A वाले को दे सकता है, AB वाले को दे सकता है. दिस थिंग इज गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक इन द फॉर्म ऑफ द टेबल. ये बहुत इजी हो गया, राइट. अपने को क्या याद रखना है, जिसके पास एंटीजन नहीं है वो ब्लड डोनेट करे, जिसके पास एंटीबॉडी नहीं है वो किसी का भी ब्लड ले सकता है, क्योंकि अगर इसके पास एंटीबॉडी नहीं है तो वहां पर क्लम्पिंग का चांसेस है ही नहीं, है ही नहीं. ओके, कार्ल लैंडस्टीनर ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये ब्लड ग्रुप सिस्टम दी थी. हमें तो पढ़ाई करनी यही है, उसके अलावा भी आएगी, दैट यू विल लर्न इन द MBBS. बहुत सारे ऐसे होते हैं. सो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी क्लियर. लेकिन अपने को ये मालूम होना चाहिए कि
ये ए एंटीजन, ये बी एंटीजन, ये सब एंटीजन एम्बेडेड ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज है। ये इनहेरिटेड होते हैं, इसके पीछे कोई एक जीन रहता है, जीन, इट इज अ पोर्शन ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल्स दिस expression. This is called it's a expression that we will see in the genetics in the standard 12. तो इसका हमें genetics भी देखना है, उसका हमको जीनोटाइप भी देखना है। अभी जीनोटाइप का मतलब क्या वो आपको मालूम नहीं होगा। अगर मैं आपको बताऊं कि आपने एसएससी में मेंडल में कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, तो वो जीनोटाइप बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। जीन को दिखाने के लिए जो एबीसीडी की जो कोई एक हमने वो एक टर्म ले ली थी, उसको क्या बोलेंगे? जीनोटाइप। ओके, तो ये जो लेटर थी આપણે એને ઇન્ડિકેટ કરીએ, એ લેટર જે હોય, જીન એ કે બી કે आई કે टी, આ બધાને जीनोटाइप કહેવાય। और उसका जो एक्सप्रेशन रहता है, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी का एक्सप्रेशन टॉल, तो टॉल तो क्या 2 मीटर टॉल, इट इज कॉल्ड इट्स अ फिनोटाइप, उसको बोलते हैं फिनोटाइप। तो फिनोटाइप के पीछे रिस्पॉन्सिबल जो कोज है वो है जनिन। जनिन को इंडिकेट करने के लिए हम इंग्लिश के कोई लेटर का यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं जीनोटाइप। बस सिर्फ इतना है, ये आपको मालूम हो गया, ये आपको मालूम हुआ। अभी यहां से देखो कि ये ए वाला, फर्दर क्वेश्चन कैन कम, ए वाला किसको नहीं दे सकता? किसको नहीं दे सकता? ए वाला ओ को नहीं दे सकता, देखो ऐसे एरो नहीं है, और बी को भी नहीं दे सकता, ऐसे भी एरो नहीं है। so many questions can be made with the help of this chart. This is very short trick to remember. ए बी किसका ले सकता है? यहां से देख लेना, ए का आ रहा है, ओ का आ रहा है, बी का आ रहा है, ए बी का आ रहा है। बी वाला किसका ले सकता है? बी का ले सकता है और ओ का ले सकता है। ए का ले सकता है? नहीं आ रहा, यहां पर एरो आ, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। कैन ए बी गिव ब्लड टू ओ? एरो आ रहा है? नहीं आ रहा है, नो। सो मेनी क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड। આ તો મેં તમને એક અત્યારે અહીંયા સિમ્પલ વસ્તુ મૂકી દીધી સમજાવવા માટે, સાવ સહેલી કરવા માટે, બરાબર? તમને એમ પૂછે કે જેનું બ્લડ ગ્રુપ ઓ છે, O blood group containing person can take the blood from A, B or B. અહીંયાથી આન્સર દો। નહીં, શું કરવા? એની પાસે એન્ટીબોડી છે, તો જો આ A આવશે, જોજો, તો આ જે A છે અહીંયાથી જોવાનું, આવો આવે તો આ એન્ટી આ બેની વચ્ચે ક્લમ્પિંગ થશે, A B આવે તો બેની વચ્ચે ક્લમ્પિંગ થશે, B આવે તો આ બેની વચ્ચે ક્લમ્પિંગ થશે, આ બેની વચ્ચે ક્લમ્પિંગ થશે, એમાં આની નાની વચ્ચે ક્લમ્પિંગ થઈ જશે। Okay, so this is very easy topic. Now we are moving on to RH positive and RH negative. Okay, एक रिसस का मां, आ साइंटिफिक नेम छे, एक स्पेशल काइंड ना मंकी नु साइंटिफिक नेम छे। तो साइंटिस्ट स्टडीड RBCs of rhesus gamma individuals. તો એમનું જે પોપ્યુલેશન હતું એમાં જે બધા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હતા એ બધાના બ્લડના સેમ્પલ લીધા, તો સાયન્ટિસ્ટને શું જોવા મળ્યું? વોટ દે ફાઉન્ડ ઇન આરબીસી? હા, બધાની અંદર there was a common antigen. This antigen was other than antigen A and B. આ બે કરતા કાંક અલગ, તો આપણે એને ટ્રાયેંગ્યુલર શેપ આપી દઈએ, આવો હતો। રિસસ ગામાના દરેક ઇન્ડિવિજ્યુઅલમાં ઓલા પિંકીશ કલરનું નોઝ હોય ને, ખબર છે ને તમને? પિંકીશ કલરનું, થોડાક દેખાવડા વાંદરા એવા આ બધા રિસસ ગામા, થોડાક દેખાવડા વાંદરા, ब्यूटीफुल बंदरिया और बंदर दोनों। ओके, तो एना ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ना आरबीसी के ऊपर ये एंटीजन था। फिर देखा कि भाई कई कई ह्यूमन में भी ऐसा ही होता है, तो अगर जो कोई ह्यूमन के आरबीसी के ऊपर ऐसा अगर कोई अपने को एंटीजन मिले तो उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। नहीं मिले तो नेगेटिव।
તો હ્યુમન 80% પોઝિટિવ વાળા હોય, પણ રિસસ કામાં 100% रिसस फैक्टर वाला दिस પછી इसको साइंटिस्ट ने नाम दे दिया रिसस फैक्टर। रिसस फैक्टर अपने में हो, फॉर एग्जांपल सपोज ओ पॉजिटिव, तो यहां पर मैं ऐसा करूं तो ये हो गया ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव ये हो गया बी पॉजिटिव। समझ में आ गया? ये क्या हो गया? बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव इन योर लाइफ बिकॉज यू आर बी पॉजिटिव। तो आने हूं અહીંથી કાઢી નાખું, जिसके अंदर आरएच फैक्टर नहीं है, मतलब ऐसा एंटीजन नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव। तो आरएच ग्रुप में हमारे पास दो हुआ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसकी वजह से यहां पर 8 हुआ, ए में पॉजिटिव नेगेटिव, बी में पॉजिटिव नेगेटिव और ए बी में पॉजिटिव नेगेटिव, ओ के अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव। 8 तरह के ह्यूमंस होते हैं इन टर्म ऑफ ब्लड ग्रुप। ऐसा हुआ। अभी एक ह्यूमन के अंदर आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी का एक स्टडी हमको करना है कि जब आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव, सपोज कोई आरएच नेगेटिव है, वो आरएच पॉजिटिव का ब्लड ले रहा है। समझना हो, अच्छी तरीके से समझना। RH negative receive the blood of RH positive. In the last lecture we show when you find any antigen in your body, your lymphocytes, especially B lymphocytes, start giving response by producing antibodies against it. Correct? So what happens? કે RH positive એટલે આવા આવે, RH negative ના બોડીમાં આવ્યા એટલે RH negative ની બોડી રિસ્પોન્સ આપશે and they will start synthesizing RH antibody. RH antibodies ऐसा बनने लगेगा तो क्या होगा? ये यहां पर लॉक हो जाएगा, तो ऐसा होने लगेगा। ये आरबीसी है, इसके ऊपर ये ट्रायंगुलर शेप का RH एंटीजन है, इसके साथ RH नेगेटिव के बॉडी में से ये जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुए RH एंटीबॉडीज, ये इसके साथ लॉक हो जाएगा तो क्लम्पिंग हो जाएगा, तो ये पर्सन का डेथ हो जाएगा, डेथ होने की संभावना है। राइट? इसका आरबीसी रप्चर हो जाएगा, आरबीसी रप्चर हो जाएगा, तो ये क्लम्पिंग होगा। अभी हम देखते हैं। हाँ, પહેલાના જમાનામાં ગામડામાં ઇન ધ વિલેજીસ બે જણાના મેરેજ, એક ભાઈ એક બેન, પછી બેનને ફર્સ્ટ પ્રેગ્નન્સી, तो घरे उत्सव थियो, बहुत बढ़िया उत्सव हुआ कि ये लेडी मदर बनने वाली है, हमारे घर में घर का चिराग आने वाला है। उत्सव हुआ और घर का चिराग का बर्थ हुआ। तो बर्थ हो गया, सब लोग खुशहाल थे। अभी 1 साल गया, 2 साल गया, अभी सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी अभी एक और आने वाली, मतलब तो अभी दूसरी बार अच्छा न्यूज आया कि ये लेडी फिर से माता बनने वाली है। दूसरी बार आनंद 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 छवाई गया कि भी चलो और दूसरा एक बच्चा या बच्ची आने वाली है। लेकिन वो जब आई या फिर आया तो उनमें जॉन्डिस या फिर आरबीसीज की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, ऐसा कुछ डिजीज हुआ और उसका डेथ हो चुका, डेथ हुआ। सेकंड प्रेगनेंसी में जो बच्चा आया वो मर गया। सोचा चलो कुछ हुआ, कोई बात नहीं, मर गया तो अभी 1-2 साल के बाद फिर से
वो भी ऐसे ही मर गया। तो अभी एक ये अंधश्रद्धा होगी, भाई ये सब बच्चे मर क्यों रहे, सेकंड प्रेगनेंसी में ऐसा हुआ, उसके बाद भी एक बार ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। अभी यहां से एक वे जाता है साइंस की तरफ, एक वे जाता है अंधश्रद्धा की तरफ। इफ दिस फैमिली मूव्स टूवर्ड्स अंधश्रद्धा, तो वो जो गांव रहता है उसके अंदर कोई बाबा लोग या कोई भुआ लोग या कुछ ऐसा कुछ रहता है जो कि वो जंतर मंतर वगैरह कुछ करता है, उसके पास जाएगा कि भाई बाबा ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, मैं कुछ करूंगा। वो ऐसे ऐसे कुछ करके एक आध फ्रूट लेके वो कुछ बोल के दे देता है लेडी को कि अब जब होगा ना तब वो बच्चा नॉर्मल आएगा। अभी प्रेगनेंसी का न्यूज़ आता है कि भाई चलो प्रेगनेंसी है, तो अभी ये बाबा लोग के ऊपर विश्वास है, वो जो उन्होंने फ्रूट दिया था या फिर कुछ करने को कहा था कि ऐसा करो वैसा करो तो हो जाएगा अच्छा। अभी इसका जो बच्चे का बर्थ हुआ वो एकदम नॉर्मल हुआ, वो भी जिंदा है। तो अभी क्या वो 100% बाबा के ऊपर ट्रस्ट हो गया कि भाई ये इससे ये अच्छा हो रहा है। उसके पास कुछ ऐसी जड़ी बूटी है कि अगर बच्चा सेकंड प्रेगनेंसी में मर जाए तो उसके बाद न मरे। ये जो एक अंधश्रद्धा है उसका आंसर हमारे पास है साइंटिफिकली, एंड इट इज ए पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ओके, सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर कि उसके अंदर क्या हुआ। हमारे पास तो ऐसा भी इलाज है कि एक बच्चा होने के बाद दूसरा बच्चा का जब बर्थ हो तो वो मरे ही नहीं। साइंस वहां तक पहुंच गया है। तो वो जो दूसरा बच्चा क्यों मर रहा था उसका भी रीजन आएगा, वो क्यों नहीं मरा, ये जब बाबा ने कुछ किया तो उसका भी रीजन आ जाएगा। हाँ, और ऐसी प्रेगनेंसी कभी भी मरे ही नहीं, उसको ऐसा कुछ डिजीज होए नहीं। दिस डिजीज इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। फीटस यू नो, एम्ब्रियो डेवलपमेंट पहले होता है, उसके बाद जो छोटा बच्चा यूट्रस के अंदर मदर के अंदर जो अभी डेवलप हो रहा है उसको फीटस बोलते हैं। सो एट द टाइम ऑफ द बर्थ वी कैन से दैट हाईली डेवलप्ड फीटस का जन्म हुआ, राइट। अभी देखते हैं कि ऐसा कौन से केस में होगा। हाँ, मैं यहां पर मदर बॉडी रखता हूं। इफ मदर इज RH नेगेटिव तो ऐसा हो सकता है। दिस थिंग्स आर गिवन इन अवर बुक। अभी ये मदर बॉडी है, ओके। यहां पर मदर बॉडी के अंदर मैं अभी रख रहा हूं फीटस, तो यहां पर हम फीटस लिखेंगे। इफ फीटस इज RH पॉजिटिव, कंडीशन देखना, फीटस RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है। यहां पर प्लेसेंटा रहता है, यू नो प्लेसेंटा, स्ट्रक्चर दैट सप्लाई न्यूट्रिशनल मटेरियल। दिस इज वन काइंड ऑफ द फिल्टर। બધું મધરના બોડીમાંથી ફીટસમાં ન જવા દે, ન્યુટ્રિશનલ મટીરિયલને એક્સચેન્જ થવા દે, પછી ઓક્સિજનને એક્સચેન્જ થવા દે, एंटीबॉडीज ने एक्सचेंज थवा दे। ओके, आफ्टर दैट अम्बिलिकल कॉर्ड भी होती है ना इसके साथ अटैच्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड। और ये अपना फीटस का बॉडी, ये फीटस का बॉडी ले लेते हैं। छोटा छोटा बच्चा, ओके। ये RH पॉजिटिव है, प्लेसेंटा है, यूट्रस की वॉल है, मदर का बॉडी के अंदर है, एंड दिस इज द फर्स्ट प्रेगनेंसी ऑफ दिस मदर। ये मदर की पहली प्रेगनेंसी है। वो जो ढोल नगारा बजे थे ना, घर का चिराग आने वाला है ये। तो હવે હરખી રીતને ધ્યાન રાખવાનું છે, अच्छी तरीके से यहाँ पर कॉन्संट्रेट करना है। एट द टाइम ऑफ द चाइल्ड बर्थ,
તમને કદાચ નવાઈ લાગશે કે એટ ધ ટાઈમ ઓફ ધ ચાઇલ્ડ બર્થ, આનો તો બર્થ થઈ જાય, સાથે સાથે આ કોડે બહાર આવી જાય, પ્લેસેન્ટા પણ બહાર આવી જાય, પ્લેસેન્ટા પણ બહાર આવી જાય. ડ્यूरिंग दिस टाइम देर इज ए चांसेस. किसका चांसेस? कि ये जो फीटस का ब्लड है वो मदर के कांटेक्ट में आ सकता है. एक्सपोजर टू इट अकर्स. जो आવું થાય, वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि इसके बॉडी, मदर के बॉडी के अंदर ये RH पॉजिटिव वाला मतलब ऐसा RBC आया. So the body of the mother is giving response against this. So as the mother body is going to synthesize such kind of the antibodies against this RH antigen. ફરી વખત સમજો, मदर RH नेगेटिव છે, उसका जो बच्चा है वो RH पॉजिटिव है. एट द टाइम ऑफ द चाइल्ड बर्थ આનું બ્લડ આના કોન્ટેક્ટમાં આવી શકે. આવું થાય એટલે મધરનું બોડી RH पॉजिटिव के सामने रिस्पॉन्स के भाग रूप ऐसे RH एंटीबॉडीज बनाने लगता है. These RH antibodies are retained in the blood of mother. So after first pregnancy, after first child, RH antibodies are there in the mother's blood. આટલું પહેલા ક્લિયર થઈ ગયું. આ બાળકનો તો જન્મ થઈ ગયો, इसका बर्थ हो गया, वो अभी नॉर्मल है, उसको कोई वांधा आया नहीं. लेकिन जब इसका बर्थ हुआ तब ये सब हुआ. उसके बाद अभी ये बच्चा तो बाहर आ गए, वो तो अभी खेलने लगा है, वो छोटा छोटा रोने लगा है, खाने लगा है. उसके मदर के बॉडी के अंदर RH एंटीबॉडी मतलब ऐसा डेवलप हो चुका है. मदर इज नॉट अवेयर अबाउट this problem, father is not aware about this problem, nobody knows about this. Okay, હવે 1 2 3 વર્ષ પછી સેકન્ડ જ્યારે પ્રેગ્નન્સી થઈ, further this happens, fetus RH positive. Now what happens? As I have told you that मदर में से एंटीबॉडी कहाँ पर जाएगा? फीटस में. तो अभी फीटस के अंदर सेकंड टाइम की प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं. फीटस के अंदर तो RH पॉजिटिव मतलब ऐसा है, मदर के अंदर ये है, क्लम्पिंग हो जाएगा. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस. एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस. આવું ચાઇલ્ડ બોર્ન થાય એને RBCs બધા બ્રેકડાઉન થઈ ગયા હોય, એમાં હિમોગ્લોबिन નો હોય, લેकिंग હોય, जॉन्डिस की जैसी बीमारी भी उसको हो सकती है और उसका डेथ भी हो सकता है. दिस इज डेंजरस थिंग. तो ये जो हमने देखा था पहले एग्जाम्पल में कि भाई ये दूसरा बच्चा है मर गया, उसके बाद भी एक ऐसा ही हुआ और मर गया. उसके बाद वो बाबा ने कुछ जंतर मंतर करके फ्रूट दिया, उन्होंने खाया. उसके बाद जो भी बच्चे का जन्म हुआ वो जिंदा रहा. क्यों? क्योंकि उस टाइम ये फीटस नेगेटिव हुआ था. तो वो तो एक लक की बात आ गई, लक की बात आ गई. તો ઓલા બાબા હોય આવા 2-5 જણાને આપે, એમાંથી એકને પછી ઈ વખતે નેગેટિવ થાય, તો હવે નેગેટિવ થાય તો કંઈ થવાનું જ નથી. તો જે કોઈ પણ ચાઇલ્ડ બર્થ થશે એ તો સર્વાઈવ જ થવાનું. તો ઓલા બાબાની ઉપર આ બધાને અંધશ્રદ્ધા બેઠી ગઈ કે ભાઈ ઓકે આ જે બધું ફ્રૂટ આપે છે ને એ જ બધું સાચું, એના કારણે જ આ બધું થયું. અને પછી એની ઉપર સિક્કો લાગી ગયો કે હવે તો આ જ સાચું. અને એ પછી વર્ષો સુધી હાલ્યો, વર્ષો સુધી હાલે. આવું એક જ વખત ખાલી બન્યું હોય, બાકીના 10 પાછા ફેલ ગયા હોય તોય તો કોઈ એમ ન વિચારે કે આ બાબા આગળ જે જડીબુટ્ટી છે એમાં ઓલા 9 તો ફેલ જાય, આ એક જ તે શું કરવાનું સક્સેસ જાય. એક સક્સેસ એટલે અંધશ્રદ્ધાને બહુ મોટો એક ટાઈપનો ટેકો જાહેર થઈ ગયો કે આ જ મેઇન છે. બીકોઝ વી આર નોટ અવેર અબાઉટ ધ ફેક્ટ about RH
એન્ટીજન એન્ડ RH એન્ટીબોડી. હવે જે કોઈ પણ વિલેજીસની અંદર આવું થઈ રહ્યું એમાં તો ત્યાંના આવું બધું કોણ ભણીને બેઠા હોય, કોને ખબર હોય? એને તો તમે RBC બોલો તોય બિચારાકને એમ લાગે આ હું બોલે છે, વોટ ઇઝ RBC? ઈ કાંક એમ કે આ ઓલી છે ને IPLની વાત કરે, ઓલા કોહલીની ટીમની વાત કરે, રોયલ ચેલેન્જર બેંગ્લોર. એ આનેથી આપણે કદાચ ખોટું બોલતા છું, RBC નો હોય, RCB હોય. હે, એ લોકોને તો એવું લાગે. હવે જુઓ, इसका इलाज क्या है? अगर ये कपल पहली ही प्रेगनेंसी के दौरान अगर डॉक्टर के पास गया तो वो डॉक्टर तो उसका ब्लड ग्रुप चेक करने वाला है ही 100%. यस, वो डॉक्टर उसका ब्लड ग्रुप चेक करेगा, मदर नेगेटिव है. उसके बाद पहली जो प्रेगनेंसी में पहला जो बच्चा आया उसका ब्लड ग्रुप चेक किया, वो RH पॉजिटिव निकला, तो अभी डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर को मालूम हो गया कि अंदर ये बन गया है. ओके, तो इसके एंटीडोट एंटी RH एंटीबॉडीज के इंजेक्शन दे देते हैं. तो ये इलाज है, एंटी RH एंटीबॉडीज, उसका इंजेक्शन दे देते हैं मदर को. ये सब गया. अभी जब सेकंड टाइम प्रेगनेंसी रहेगी, अगर RH पॉजिटिव भी रहेगा तो भी बच्चे का डेथ नहीं होने वाला है. This is very simple thing. There is no need to go to babas and buas in the village. These babas and buas are a specialized personality living in the village. અને બધા એની આગળ જતા પ્યોર અંધશ્રદ્ધા છે. આપણો સબ્જેક્ટ જ અંધશ્રદ્ધા ને મુક્ત કરે છે. આવું તો કેટલું બધું અત્યારે ચાલી રહ્યું છે. જેમ જેમ આ બધા લેસનની અંદર આવશે એમ હું તમને આવી બધી વાતચીત કર્યા કરીશ. તો એવરીબડી એટ ધ ટાઈમ when they come to know that the lady is going to give the birth, she is pregnant, then all the tests must occur. તો આવાનો આપણે ભોગ જ ન બનીએ. ટોપિકમાં કાંઈ નથી, ટોપિક હાવ હેલો છે કે જો મધર RH નેગેટિવ હોય, એનો જે ટેણકો આવવાનો છે એ RH પોઝિટિવ હોય, તો જ્યારે એનો બર્થ થાય ત્યારે આનું બ્લડ એના કોન્ટેક્ટમાં આવે એટલે આના બોડીમાં એન્ટીબોડી બની જાય. આનો તો બર્થ થઈ ગયો. હવે જ્યારે સેકન્ડ પ્રેગ્નન્સીમાં ત્યારે પોઝિટિવ થયું, આના એન્ટીબોડી ફિટસના RBC સાથે ક્લમ્પિંગ થઈ જાય, એરિથ્રોબ્લાસ્ટોસિસ ફિટાલિસ થઈ જાય. હે, એના આવા બધા ડિઝીઝ અને જોન્ડિસ ને એવી ટાઈપના બધા ડિઝીઝ થઈ શકે. એના RBC ઓછા હોય, એને હિમોગ્લોબિન ઓછું હોય, કારણ કે બધું બ્રેકડાઉન થઈ ગયું RBC, તો इसका डेथ भी हो सकता है. તો એ ન થાય એટલા માટે શું આપવાનું? જે બન્યા છે એને કાંક ઇરેડિકેશન માટેની એક फैसिलिटीના भागरूपे एंटी RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन दे दो, ये खत्म हो गया, अभी ये नॉर्मल हो गई मदर. इतना टॉपिक है. આટલીક વસ્તુ જાણવામાં ને સમજવામાં આપણા વિલેજીસની અંદર 50 to 100 યર્સ વી ગયા, અને હજી જ્યાં જે બધા વિલેજીસ એવા છે કે પ્રેગ્નન્ટ વુમનને કોઈ પણ PHCમાં લઈ જવામાં જ ન આવે, કોઈ પણ ડૉક્ટર પાસે લઈ જવામાં જ ન આવે, તો એ હજી આવી રીતને હેરાન થતું હોય ને બધા કુટુંબ ઓલા બાબા ને ઓલા ભુવાની પાછળ કેટલા બધા પૈસા ખર્ચી નાખતા હોય, હાથમાં કાંઈ ન આવે, અને કુટુંબના કુટુંબ આખા બધા એક ટાઈપના પાયમાલ થઈ જાય. ધીસ ઇઝ હેપનિંગ. સો નાઉ વી આર મૂવિંગ ઓન ટુ અનધર ટોપિક. એક લિમ્ફ આપણે આની અંદર ભણવાનું છે અને એક બ્લડ ક્લોટિંગ ભણવાનું છે. ઓકે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી વિલ સ્ટડી અબાઉટ લિમ્ફ. ટીસ્યુ ફ્લુઇડ, ઇન્ટરસ્ટિશિયલ ફ્લુઇડ. Circulation of lymph takes place in lymphatic system. There are so many lymph vessels in our body as blood vessels. We find in our body, as we find in our body blood vessels. Similarly, there is lymphatic vessels. So many. તો એક આખું બ્લડ વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ અલગ છે, એની અંદર આર્ટેરિયલ સિસ્ટમ ને પછી વિનસ સિસ્ટમ ને એક લિમ્ફેટિક સિસ્ટમ અલગ છે. રાઈટ? So, we are going to see about the difference between arteries, veins and lymph vessels. આ જે ત્રણેય છે એની અંદર શું ફેર છે, પણ એક વસ્તુ નક્કી છે
कि in case of the arteries and veins, circulation of the blood occurs. Whereas in case of the lymph vessels, circulation of lymph occurs. Okay. So, to understand this topic, I need to draw some of the tissue cells. These are tissue cells. આ બધા ટીસ્યુ સેલ્સ છે. કોઈ પણ ઓર્ગન લઈ લ્યો એના. Now these cells must supply oxygen and nutritional material. So certainly in the first lecture we saw that when you are giving some of the nutritional material to the cells, in turn the cell is giving you its excretory waste. These wastes are need to be eliminated outside. But यहाँ तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशनल मटेरियल को पहुंचाने के लिए what we need? Blood. Okay. So from the heart originate main aorta, aorticas. उसकी बहुत सारी ब्रांचेस रहती है. तो वो सब रहती है बड़ी बड़ी आर्टरी. Now listen me very carefully. As soon as any artery enter to organ, it gives so many branches. These branches are called arteriole. તો મેઇન એવોર્ટા એની મેઇન આર્ટરી ઓર્ગનમાં ગઈ એટલે એની બધી બ્રાન્ચ થઈ, બ્રાન્ચને આર્ટેરિયોલ કીધું. And these arterioles further divides into so many branches and it forms one network which is called small blood capillaries. These small blood capillaries network remain in contact with these cells. So I am drawing now this small blood capillaries network, right? यहाँ पर मैं ड्राइंग करूँगा स्मॉल ब्लड कैपिलरीज नेटवर्क. इट इज इन कॉन्टैक्ट विद दिस सेल्स, नॉट इनटू द सेल. एंड दिस स्मॉल ब्लड कैपिलरीज नेटवर्क्स टुगेदर कनेक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म वेन्यूल्स, एंड सो मेनी वेन्यूल्स आफ्टर मर्जिंग विथ ईच अदर इट विल कम आउट फ्रॉम द ऑर्गन एज वेन. અને આ બધી વેઇન પછી મેઇન વેના કહેવા, અને મેઇન વેના કહેવા will go back to heart. Superior vena kehwa and as inferior vena kehwa, right? So यहाँ पर पूरा का पूरा एक नेटवर्क का ड्राइंग करना है. कैसे करते हैं ये थोड़ा सा देख लेना. ब्लड का फ्लो यहाँ से और यहाँ से चला जाएगा बाहर. So we have put tissue cells. अभी यहाँ पर नेटवर्क करेंगे. नेटवर्क कैसे बनना है ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रख के सीख लेना, वो बहुत इजी है. दिस फिगर यू मस्ट हैव नॉट गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक, लेकिन फंडा क्लियर करने के लिए ये फिगर याद रखनी बहुत ही अनिवार्य है. सिंपल है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ब्लड कैपिलरीज नेटवर्क को ड्रॉ कर रहा हूँ. ये हो गया. ओके, स्मॉल ब्लड कैपिलरीज नेटवर्क ये वाला. अभी ये जो स्मॉल ब्लड कैपिलरीज है उसको हम थोड़ा सा एनालाइज कर देते हैं. तो ये उसकी वॉल का सेल रहेगा, उसका अरेंजमेंट ऐसे रहेगा. ये उसका अरेंजमेंट है. एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन दिस डायरेक्शन.
So circulation of blood is in this direction, right? ऐसे जा रहा है. So when blood pass through these ducts, some of the components of the blood will come out, and these components, these parts are collected in between the space of cells. ये यहां पर कलेक्ट होगी. ये आपको पता चला, जो सेल के बीच में जो जगह है वहां पर ये ब्लड में से थोड़ा सा कंपोनेंट बाहर आ गया, वो वहां पर एक्यूमुलेट होगा. इसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, or in another word it is called interstitial fluid. Interstitial fluid. अभी देखना हो अच्छी तरीके से, अभी इसमें से भी मैं 3 चीज को बड़ा कर रहा हूं, उसमें से एक ये आ गई, दूसरी यहां पर मैं एक टिश्यू सेल रख दूंगा ब्लैक कलर का, और ये स्मॉल ब्लड कैपिलरीज में से जो बाहर आ गया यहां से, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये अपना हो गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड. तो उसके अंदर कंपोनेंट कौन से है? ब्लड के जो है वही है, मगर जो बिगर साइज के मॉलिक्यूल्स, दिस मॉलिक्यूल्स आर लेफ्ट विद इन द ब्लड, वो यहां से बाहर नहीं आए. फॉर एग्जाम्पल, जो बड़े बड़े सेल है वो यहां से बाहर नहीं आए, तो इसके अंदर आरबीसी नहीं होगा, नहीं होगा. इसके अंदर बड़े डब्ल्यूबीसीज भी नहीं रहेंगे, इसके अंदर बड़े साइज के प्रोटीन भी नहीं रहेंगे. तो इसके अंदर ज्यादातर कौन रहेगा? कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा. वाटर रहेगा, हार्मोन रहेगा, उसके अंदर न्यूट्रिशनल मटेरियल, ग्लूकोज, एमिनो एसिड रहेगा. So this is actually acting as a medium. So we can say that, see, when this blood needs glucose, તો ભાઈ ગ્લુકોઝ તો આમાં છે, અહીંયાથી બહાર આવ્યો એટલે આમાં આવી ગયો, આમાંથી અહીંયા આવી ગયો. ઓક્સિજન આમાંથી ડિફ્યુઝ થઈને આવશે ને, so through the diffusion ये ऑक्सीजन, ये जो ब्लड के अंदर है वो यहाँ से डिफ्यूज होके सेल के अंदर आ गया ऑक्सीजन, सेल के अंदर आ गया ग्लूकोज. सिमिलरली व्हाट वी कैन से, CO2 यहां से रिलीज होके अंदर जा सकता है ना, CO2, ये हमने देखा था. तो एम मानी लो कि ये एक रिवर है, यहां से यहां आना है, यहां से यहां जाना है. इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज मीडियम, राइट? दिस इज द फ्लूइड which is found in between tissue cells. That is why it is called tissue fluid. તો સેલના બધા કમ્પોનન્ટ જે બ્લડમાં જઈ અને પછી જે બધા એલિમિનેટ આઉટ થવાનો હોય બોડીમાંથી, એને અહીંયાથી જ એન્ટ્રી લેવી પડશે, બીજી કોઈ સ્પેસ જ નથી. સો એટ ધીસ માઇક્રો લેવલ યુ મસ્ટ અવેર, યુ મસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ what kind of the arrangement is there and what kind of the arrangement between these cells and this all blood capillaries, ये सब के बीच में कैसा रिलेशन है इन टर्म ऑफ अरेंजमेंट, दैट यू मस्ट अवेयर. तो આવું આખા બોડીની અંદર આવું બધું હાલતું હોય. नाउ व्हाट अबाउट लिम्फ? यही लिम्फ है, मगर देखना हो अभी यहाँ पर ये सब ब्लड वेसल्स है, ये सब ब्लड वेसल्स है. अभी यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल्स का भी नेटवर्क रहता है. आई विल ड्रॉ इट विद द हेल्प ऑफ द ग्रीन कलर. तो मैं यहाँ पर ड्राइंग कर रहा हूँ. एक मैंने नेटवर्क यहां पर ड्रॉ किया. ओके, ये जो ग्रीन कलर है वो लिम्फेटिक वेसल्स है, बहुत छोटी 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 छोटी. ओके, चलो याद करो डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन. उसमें लैक्टिल आई थी. यस, लैक्टिल के अंदर कौन जा रहा था? फैटी एसिड ग्लिसरॉल. याद आया? चिलोमाइक्रोन, माइसेल्स. हाँ, तो आ एनी जेवी नानी 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 स्मॉल लिम्फ वेसल्स है. These lymph vessels absorb this tissue fluid.
આ જે ટીસ્યુ ફ્લુઇડ છે એ જ આ લિમ્ફ વેસલ્સમાં જવાની અને આવી પછી આમથી આવતી આ બધી લિમ્ફ વેસલ્સ બધી ભેગી થઈ અને એક મોટી લિમ્ફ વેસલ બનાવે એન્ડ ધેટ બિગ lymph vessel is opening into vein subclavian. अपने को देखा है यहां पर रहता है lymph node, इसके अंदर फाइटिंग होती है ना, ये lymph node है. तो ये जो टिश्यू फ्लूइड यहां से lymph vessels द्वारा उसके थ्रू एब्सॉर्ब होके ये लिम्फेटिक डक्ट के अंदर सर्कुलेट होने लगा, उसको हम क्या बोलेंगे? लिम्फ. और उसके अंदर लिम्फोसाइट्स भी रहता है. लिम्फ कंटेन लिम्फोसाइट 2. तो इसके अंदर लिम्फ सर्कुलेट इन लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ सर्कुलेट कर रहा है और लिम्फ में रहता है लिम्फोसाइट. लिम्फोसाइट्स का काम क्या है? वो छोटा वाला WBC, उसका काम क्या है? अगर यहां पर टिश्यू फ्लूइड में कोई बैक्टीरिया वायरस आ गया, वो जो वायरस है वो इसके अंदर चला गया तो ये लिम्फोसाइट उसका सर्वनाश कर देगा. बिकॉज लिम्फोसाइट कहेगा आई एम फाइटर, आई एम सोल्जर. राइट? तो हारू थाई से शू जोजो हवे आखू ब्लड आयु फोर्स थी, ब्लड मांथी सम ऑफ दी सब्सटेंसीस, मेजोरिटी ऑफ दी सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा, ये બધું यूज आउट થઈ ગયું. પછી ટીશ્યુ સેલની ઇન બિટવીન જે સ્પેસ છે એમાં આવી ગયું, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ટીશ્યુ ફ્લુઇડ ઓર ઇન્ટરસ્ટિશિયલ ફ્લુઇડ. એ જ એબ્સોર્બ થઈ ગયું લિમ્ફેટિક સિસ્ટમથી અને પાછું લિમ્ફેટિક ડક્ટમાં બધામાં સર્ક્યુલેટ થઈને બેક ટુ વેઇનની અંદર ગળી ગયું. મૂળ તો આટલું જ આપણે ભણ્યા. પણ આપણને એમ કે આ લિમ્ફ છે એમાં ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોનું થાય છે? You are to give answer hormone, you are to give nutritional material plus water plus iron plus a very little amount of lymphocytes. ये सब इसके अंदर है. राइट? तो ये अपनी बुक में लिखा हुआ है that you are to study. ओके? तो इसका एक अच्छी तरीके से अपने को स्क्रीनशॉट ले लेना है. अभी હું અહીંયાથી થોડોક આગો વિયો જાઉં છું, સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો.